A very wonderful good morning to all my lovely students of 12th class. I hope, students, that you all must be fit and fine at your own places. And I definitely hope that you all must be sitting with your open textbooks so that we can continue our chapter. Okay, as you can already see, the chapter name is The Enemy, and it is written by Pearl S. Buck. Okay, now in the last class we have already discussed about Dr. Sadao, the placement of his house, his profession, and his relationship with his father. Okay, students, now of course in the last class we have studied that he met Hannah in America, of course, right? But he waited to fall in love with her, as first he wanted to know whether Hannah was pure in her race. That means, was Hannah pure Japanese? Okay, students. Okay, now we will start the chapter from there on. Okay, and of course Sadao is also informing us that he met Hannah at Professor Harley's house. Okay, he was Professor Harley. Okay, just remember this name. He was Professor Harley. Okay, so at his house, Sadao met Hannah for the first time, dear students. Okay. Okay, and here Sadao has also mentioned in this paragraph that Professor Harley's wife was very voluble. Now, what's the meaning of voluble? Voluble means extremely talkative. Okay, a person who is extremely talkative. Okay, and of course, I know many 12th class students are voluble, right? But students, change your habit. Okay, as your talking can take you nowhere. Okay, so work hard in studies. Okay, so now from the next para, we will begin the chapter. Okay, now in this para, students, it is written, now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. Even though they had been married years enough to have the 2 children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had sent her the marriage, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hannah had talked everything beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. Okay, now students, of course, Sadao and Hannah were very happily married couple. Okay, and they had 2 little children, and of course heedlessly, they have not married each other heedlessly in America. ओके उस दिन हमने आपको बताया था कि सडाओ और हैना ने ऐसा नहीं किया था दैट फाइन दे मेट ईच अदर, दे फॉल इन लव विद ईच अदर एंड दे सिंपली गॉट मैरिड. नो स्टूडेंट्स, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था. ओके, दे वेटेड. ओके, फर्स्ट दे कंप्लीटेड देयर स्कूल वर्क. ठीक है, स्कूल वर्क का मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? स्कूल वर्क मीन्स अपनी मेडिसिन की स्टडी, अपनी पढ़ाई लिखाई, जिस पर्पस के लिए उन्हें अमेरिका भेजा गया था. ओके, तो सबसे पहले उन्होंने वो चीज़ें कंप्लीट करी, एंड कंप्लीट करने के बाद ही स्टूडेंट्स व्हेन दे रिटर्न्ड बैक टू जापान दे गॉट मैरिड. ओके, ऑल्दो दे हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोरहैंड, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सडाओ's father only their marriage took place. Okay, students, so they didn't married each other heedlessly. They met in America, but definitely they waited for each other. Okay, and above all, Sadao waited for his father's permission, and then they moved further in life. And now see, years after, okay, they were happily married, and now they have 2 little children, and they all are very happy. Okay, especially Sadao and Hannah, they understand each other and they love each other. Okay, students,
Now, let us see what happens at this moment. Now, both husband and wife, you can see, just imagine students, they are standing, okay, and the mist has already surrounded their house, okay. That means the white blanket has covered their house, okay, students. Now, what happens? It is further told us, it was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean. Flung, okay. Now, at this point of time, students, okay, right, as their house, okay, as their house, this is Sadau's house, and it was, covered with mist. It was covered with mist, okay, white mist it was covered with. They saw a man, okay. It appeared, okay, it appeared that a man flung out, okay, a man has flung out and again he has dropped. ठीक है, एक व्यक्ति एकदम से अचानक से इस मिस्ट में अपीयर होता है और फिर गिर जाता है. ही फ्लंग, ऐसा लगता है मानो उड़ रहा हो, ओके, राइट. तो इस तरह से, एंड ऑफ कोर्स ही अगेन फ्लंग अप, दोबारा से वो मैन खड़ा होता है, एंड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, और ऐसा लगता है कि दोबारा उसे ठोकर लगी एंड वो गिर गया, ओके. ये सब उन्हें मिस्ट में दे वर एबल टू सी, ओके. एंड ऑफ कोर्स उसकी जो बॉडी थी उस मैन की, वो इस तरह से आउटलाइन हुई हुई थी इन द मिस्ट, ओके. एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद, ठीक है, उसके हाथ फिर से ऊपर जाते हैं एंड वो दोबारा से गिर जाता है, स्टूडेंट्स. तो हैना एंड सडाओ जैसे ही ये नज़ारा देखते हैं, व्हाट हैना सेज, ओके, शी क्राइड, हु इज़ दैट, कौन है ये, हु इज़ दैट, ओके. एंड ऑफ कोर्स वो एकदम से सडाओ का हाथ ड्रॉप कर देती हैं एंड वो दोनों आगे की तरफ झुकते हैं थोड़ा, बिकॉज रेलिंग पे खड़े हैं, कॉर्नर पे खड़े हैं, सो दे बेंड फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ झुक के वो देखने की कोशिश करते हैं. एंड ऑफ कोर्स अब वो इंसान उन्हें दोबारा दिखाई देता है, एंड नाउ ही वॉज क्रॉलिंग. क्रॉलिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, है ना, घुटनों के बल चलना, ठीक है, ओके, रेंगना, बेसिकली चलना नहीं, वॉकिंग, ही वॉज नॉट ऑन हिज फीट, ठीक है. तो वो क्रॉल कर रहा था वो व्यक्ति, ठीक है. एंड फिर उन्होंने देखा कि क्रॉल करते करते वो मुंह के बल वहाँ पर गिर गया, ठीक है. कहाँ पे था, सैंड में, ठीक है. समुद्र के किनारे पर क्या होती है स्टूडेंट्स, यू हैव एवर सीन, गए हैं आप कभी सी शोर पे, हाँ, ओशन शोर पे कभी गए हैं, वेरी नाइस, रेतीली ज़मीन होती है. तो हमारा सडाओ का घर कहाँ है, जस्ट नियर दी ओशन, ठीक है. तो वहाँ की ज़मीन कैसी थी स्टूडेंट्स, रेतीली, ठीक है. एंड अब वो मैन उल्टा मुंह के बल गिर चुका था वहाँ पे, ओके. नाउ सडाओ सेड, अ फिशरमैन परहैप्स, हो सकता है, ही मे बी अ फिशरमैन, ओके. एंड maybe he must have watched from his boat. watched from his boat का मतलब क्या है कि अपनी बोट से अलग हो गया होगा, ठीक है. हो सकता है तूफान में गिर गया हो, छूट गई हो नाव उसकी, या कोई और रीज़न, ओके. एंड ऑफ कोर्स, लेकिन ये कहते कहते हमारे दोनों सडाओ और हैना दौड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे, एंड दे वर अप्रोचिंग दैट मैन, ओके, हु वाज लाइंग फ्लैट ऑन हिज फेस राइट नाउ, right students. Now the moment, okay, and of course his house was a mile or two away from both the sides, ठीक है. यानी कि सडाओ का जो हाउस था, it was both mile and 2 miles away from the फिशरमैन्स विलेज, ठीक है. जो फिशरमैन के विलेज थे उनसे माइल या 2 माइल्स दूर था सडाओ का घर, फ्रॉम बोथ द साइड्स, ओके. एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ लोनली कोस्ट, ठीक है. ये जो किनारा था ये बिल्कुल सुनसान किनारा था, ओके. एंड ऑफ कोर्स रीज़न क्या था, ये जो किनारा था स्पेशली सडाओ के घर के पास का स्टूडेंट्स, इट वाज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, है ना. रॉक्स तो आप समझते हैं, रॉक्स क्या होता है, पत्थर,
पत्थर, बट स्पाइक्ड क्या हुआ? स्पाइक्ड क्या होते हैं? स्पाइक शूज पहने आपने कभी? फुटबॉल खेली है, स्पाइक शूज पहने हैं? क्या खासियत होती है स्पाइक शूज की? कांटेदार होते हैं ना। क्यों कांटे लगे होते हैं? ग्रिप बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो रॉक्स थे स्टूडेंट्स, वो नोकीले रॉक्स थे, ठीक है। बहुत पत्थर थे और वो स्पाइक्ड थे, नोकीले थे। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? एंड ऑफ कोर्स सदाओ जानते थे कि अगर कोई भी इंसान इन रॉक्स को पार कर कर मेरे घर के थ्रेश होल्ड तक पहुंचा है, तो दैट मीन्स उसका क्या मतलब है? ही मस्ट बी बैडली टॉन। टॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? हाँ, टॉन क्या होता है? ऑफ कोर्स जब हमारा कोई क्लोथ है ना, मीन्स वर्न आउट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, तो वो फट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टॉन वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? कोई बताएगा किसके लिए, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? ऑफ कोर्स द बॉडी ऑफ दैट मैन, बॉडी, ठीक है। यानी कि स्पाइक्स के ऊपर से जब वो मैन गुजरा है और सदाओ के घर तक पहुंचा है, तो वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होगा, ठीक है। उसे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची होगी, ये बात सदाओ जानते थे स्टूडेंट्स। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, बात समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ, ओके। एंड जैसे ही both of them came near to that man, they saw, okay, and of course on the one side, okay, now students understand this nicely, one side, okay, as this man was lying flat, okay, he is lying flat, okay, this is arms, ओके, ही इज़ लाइंग फ्लैट, फेस उनका नीचे की तरफ है, ठीक है। तो वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑलरेडी इट वॉज जो सैंड था उसकी एक तरफ ऑलरेडी सोक्ड विद ब्लड हो चुका था, रेड सोकिंग। रेड सोकिंग कहाँ से आएगी? कलर तो होगा नहीं, इट वॉज द ब्लड ऑफ दैट मैन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, वो जो व्यक्ति था, दैट मैन, ही वॉज ब्लीडिंग profoundly, okay, because he was badly torn, okay. Now of course सदाव जैसे ही उसे देखते हैं, सदाव says he is wounded, okay, वो घायल है, okay, and of course वो बहुत जल्दी, ठीक है, उसको सीधा करते हैं, ठीक है। बात समझ आई? अभी वो फेस के बल गिरा हुआ है, उसको जैसे ही वो टर्न ओवर करते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है, उनकी जो हैट है वो अलग गिर जाती है। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही वो उस मैन का फेस देखते हैं, okay, the moment they saw the face of that person, this motionless man, motionless मतलब क्या होता है? yes, without any movement, ठीक है। अब जैसे ही उस मोशनलेस मैन का वो फेस देखते हैं, तो हैना क्या चिल्लाती हैं? yes, this was the reaction of Hannah, a white man. white man से क्या मतलब था? American, ठीक है, राइट। अभी कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था? जस्ट रिमेंबर, इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड जापान एंड अमेरिका आर अगेंस्ट ईच अदर। And हमारे Dr. Sadao and Hannah, who are they? They are Japanese, and now they have seen, of course, a white man. Is that clear, dear students? Okay, now let us see what will they do further. Okay, now they have received the biggest shock that the man who is wounded is a white man. Okay, students?
Okay, now let's move further in our chapter. And of course, Sadao also agrees with Hannah that yes, it is a white man, okay? And of course, students, unka face jo tha, the face of that white man was, of course, very dull, okay? And of course, his yellow hair were long. एंड ही वॉज वेयरिंग रैग्स, ओके, उनके जो कपड़े थे वो बहुत पुराने थे और फटे हुए थे, ओके स्टूडेंट्स. एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, ओके, उनका जो चेहरा था वो कैसा दिखाई दे रहा था स्टूडेंट्स? टॉर्चर्ड फेस. टॉर्चर्ड फेस क्या होता है? व्हाट इज टॉर्चर्ड? हाँ, एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है, अत्याचार किया गया, ठीक है. उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था मानो उसको बहुत ज़्यादा सताया गया है, उस पर अत्याचार किया गया है, ओके स्टूडेंट्स. एंड ऑफ कोर्स ही वॉज यंग एंड अनकॉन्शियस. वो पूरी तरह से बेहोश था और उसे कुछ पता नहीं था कि जो कपल है, ठीक है, ये जो हस्बैंड वाइफ हैं सडाओ और हैना, ये उनके साथ क्या कर रहे हैं, ओके. नाउ ऑफ कोर्स सडाओ रिमेंबर द वुंड, ठीक है. क्या पढ़ा है अभी हमने? उनके एक साइड से ब्लड बहुत ज़्यादा प्रोफाउंडली ब्लीड हो रहा था एंड वहाँ से ब्लड फ्रेशली फ्लो हो रहा था, ठीक है. एंड तभी सडाओ ने देखा, सडाओ एक्सपर्ट हैं, वो कौन है? सर्जन हैं. ही इज़ नॉट अ सिंपल डॉक्टर, फिजिशियन नहीं है वो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. ही इज़ अ सर्जन, ओके. एंड ऑफ कोर्स ही इज़ सर्चिंग फॉर द वुंड. गोली लगती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन समबडी इज़ हिट विद अ बुलेट, क्या होगा बॉडी में? बताओ बताओ, जस्ट टेल मी. यस, ए होल विल बी ओपन्ड. होगा नहीं होगा? हाँ, बुलेट जब चल के लगती है क्या होता है? होल बन जाता है, ठीक है. सडाओ उसी जख्म को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं एंड ऑफ कोर्स अभी ब्लड जो है फ्रेशली कैसे निकल रहा है? अभी कैसे निकल रहा है? गोली चलने की तो कोई आवाज़ नहीं आई है अभी. सडाओ और हैना को फिर क्या हुआ है? यस, याद आया स्टूडेंट्स आपको? सडाओ के घर के पास क्या है? स्पाइक्ड वाले रॉक्स हैं. तो उन्हीं में से एक रॉक उनके ज़ख्म पे लग चुका है, जिस वजह से जो बुलेट है वो और अंदर चली गई है, डीप चली गई है. यस, इट इज़ अ फैक्ट, ओके. बुलेट लगी हो और अगर कोई पॉइंटिंग, ठीक है, कोई नुकीली चीज़ उस पर लग जाए, इट विल गो इनसाइड, ओके, डीप इनसाइड. और वही इस बेचारे वाइट मैन के साथ हो चुका था स्टूडेंट्स, ओके. अब जो गोली थी उनके बॉडी में और अंदर जा चुकी थी एंड ब्लड वॉज प्रोफाउंडली कमिंग आउट फ्रॉम दैट वुंड, ओके. एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, ओके, right, and Sadao also knew that he has been shot some days back ago, ठीक है, यानी कि अभी गोली नहीं लगी है, 2 या 3 दिन पहले लगी है गोली, ठीक है. लेकिन अब ये घायल हुए हैं इन स्पाइक्ड रॉक्स की वजह से. इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स. एंड ऑफ कोर्स हैना अब एकदम पूछती हैं, हाउ ही इज ब्लीडिंग? कैसे ये इतना, मतलब इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग कैसे हो रही है इन्हें? बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी टूरिस्ट नहीं आते, कोई फिशरमैन नहीं आते, फिर इनको क्या हुआ है? ऐसी क्या बात है? ओके. एंड ऑफ कोर्स, ओके, नाउ स्टूडेंट्स, Sadao knew that he's been injured with a fire bullet, means a bullet wound is there, okay, because the flesh was blackened with the gunpowder, ठीक है. ब्लीडिंग तो हो रही थी बट जो फ्लैश है वो थोड़ा सा ब्लैक हो चुका था गन पाउडर की वजह से, ओके. एंड नाउ सडाओ कहते हैं
what shall we do with this man? And of course, with his trained hand, he stanched the fearful bleeding. Stanch का मतलब क्या होता है? कुछ फिलिंग कर देना, ठीक है, टू फिल समथिंग. अब उन्होंने क्या किया, सदाओ ने जो उसका वुंड था उस वाइट मैन का, ओके, जहाँ गोली लगी थी, उसे स्टैंच कर दिया टू स्टॉप द ब्लीडिंग. अभी ब्लीडिंग रुक गई, ठीक है. और स्टैंच में किया क्या उन्होंने, बताएं आपको, सी मॉस. सी मॉस समझते हैं? मॉस क्या होता है? एल्गी, काई, ग्रीनिश, है ना. सी मॉस कैसी होती है? ऑफ कोर्स वहाँ से बहुत जल्दी सदाओ ने सी मॉस कलेक्ट करके उनके इस वुंड में फिल कर दिया स्टूडेंट्स, बिकॉज ही वॉज एन एक्सपर्ट. ओके स्टूडेंट्स, अब ब्लीडिंग रुक चुकी थी, बट ऑफ कोर्स जब वो सदाओ हमारे इस कि सी मॉस को इसमें फिल कर रहे थे, द मैन मोन्ड. मोन्ड क्या होता है? कराहना, दुखी होना, टू क्राई इन पेन. ओके, ही मोन्ड इन पेन एंड हिज स्टूपर, बट ही डिड नॉट अवेक. ओके ओके, एंड इन हिज स्टूपर, स्टूपर मीन्स अनकॉन्शियस पोजिशन, ठीक है. अपनी बेहोशी में ऑफ कोर्स वो कर रहा था, लेकिन वो उठा नहीं. ओके, ना स्टूडेंट्स, सदाओ इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. सदाओ अपने आप से ही बात करते हैं, मीन्स अपने अंदर ही कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो. ओके, क्या कहते हैं वो अपने आप से? द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, है ना. कि सबसे अच्छी बात क्या होगी इस वुंडेड मैन के लिए? एक तो ये वाइट मैन है, अमेरिकन है, ऊपर से घायल है, तो सबसे अच्छी बात क्या होगी? दैट वी शुड पुट हिम बैक इनटू द सी, कि हम इसे वापस समुद्र में डाल दें, ठीक है. और है ना, देखिए वो बहुत ही ओबीडियंट वाइफ है, वो समझ गई सदाओ के मन में क्या चल रहा है. वो एकदम से बोलती हैं यस दैट वुड बी बेटर, कि हाँ यही बहुत अच्छा होगा, ठीक है. लेकिन हैना की नज़र कंटिन्यूसली कहाँ है? ऑन दैट मोशनलेस मैन, ठीक है. उस मोशनलेस मैन पे वो कंटिन्यूसली देख रही हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ओके, बिकॉज ओके, सदाओ क्या कहते हैं? दैट इफ़ वी शेल्टर्ड, अगर हमने शेल्टर किया यानी कि पनाह दी किसी वाइट मैन को, देन वी विल बी अरेस्टेड एंड ऑफ कोर्स वी शुड टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर. ओके, इन एनी केस ही शुड डाई. ओके, मीन्स हमारा जो वाइट मैन है, he should die. Means what is his real condition? The condition is of death. Okay, although for the time being the bleeding is stopped. Okay, but of course even Sadao knew that he will die. Okay, and of course Hannah also, you know, agrees with him that the kindest thing would be we should put him back. Okay, is that clear students? And of course बोथ ऑफ देम, सी स्टूडेंट्स इमोशंस को समझने की कोशिश करें. वो दोनों क्या बात कर रहे हैं? व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट? दे आर टॉकिंग अबाउट फाइन वी विल थ्रो हिम बैक, बट नो वन इज मूविंग. ठीक है, ना तो सदाओ कुछ फिजिकली कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उसे वापस समुद्र में डाले, और ना ही हैना कर रही हैं. एग्री दोनों कर रहे हैं कि या वी विल पुट हिम बैक इनटू द सी, दैट दे आर एग्रीड अपॉन. ओके, but students, okay, Sadao said that there's something about him which looks American. ये जो man है, he looks American. ठीक है, अब कंफर्मेशन कहाँ से मिले? दैट मैन इज अनकॉन्शियस, कपड़े फटे हुए हैं, कोई ऐसा आई कार्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं है, क्या करें? कैप. ओके, हमारा ये जो वाइट मैन है, इसके सर से कैप गिरा था स्टूडेंट्स. अब सदाओ उस कैप को उठाते हैं, ठीक है, सैंड उसमें लग चुकी है, वो गीली कैप है, राइट, एंड उस पर क्या मार्क्ड था? इट वॉज मार्क्ड एज अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप and US Navy
plus he was a prisoner of वॉर. ओके स्टूडेंट्स, बात समझ आई? हमारे ये जो अमेरिकन है ये जनरल कोई सिटीजन नहीं है, ये यूएस नेवी के सेलर हैं. ठीक है, एंड इतना ही नहीं, ये प्रिजनर ऑफ वॉर भी हैं. देखिए, किसी भी सिपाही को बैटलफील्ड में पीछे गोली कब लगती है, पीठ पे गोली कब लगती है, बताइए. जस्ट इमेजिन. ऑफ कोर्स जब वो भागता है, देन ओनली ही विल बी शॉट डेड फ्रॉम बिहाइंड. और हमारे इस वाइट मैन को गोली कहाँ लगी है, जो ब्लीडिंग स्टॉप करी है हमारे सदाव ने, कहाँ लगी है? एट द बैक पोर्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, युद्ध के बंदी भी हैं. ठीक है, यूएस नेवी के सेलर हैं और अब ये प्रिजनर ऑफ वॉर भी हैं. अपनी जान बचाने के लिए जब ये भागे, ठीक है, तो जापानीज आर्मी ने इन्हें शूट किया है. गॉट द पॉइंट? Okay, I hope you must be taking interest. Of course, it is an interesting chapter. It is full of emotions and sentiments, dear students. Pearl S. Bug has written such a beautiful, expressive story. Okay, now students, see what happens. Okay, now of course, and when it is already confirmed that he is a prisoner of war and he has escaped and he has been shot in the back, of course, then it is very, very difficult. Okay, now both of them finally decides that fine, we will put him back into the river. Means not river, sea, we will put him back. Okay, and of course Sadao hesitated. Sadao is not completely willing to put him back. Okay, what he said, students, अभी सदाओ के इमोशंस क्या हैं? वो क्या हैं? ह्यूमन बीइंग है, सर्जन है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स सिटीजन भी है अपनी कंट्री के. ओके, right? Chaliye, now we'll read. The strange thing is that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. बात समझ आई स्टूडेंट्स? सदाओ एज अ सर्जन क्या कहते हैं कि अगर, ओके, इफ दिस मैन वुड हैव बीन होल, मतलब अगर ये ठीक ठाक होता, वन सिंगल पीस होता, ठीक होता, ठीक है, तो मैं क्या करता? ऑफ कोर्स डेफिनेटली इसे हैंड ओवर टू द पुलिस, मैं इमीडिएटली कर देता. ओके, बिकॉज ही इज अमेरिकन, ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी. बट मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट दिस मैन इज वूंडेड. ये एक घायल इंसान है और ये नॉर्मली वूंडेड नहीं है, ये क्रिटिकली वूंडेड है. बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? क्रिटिकली वूंडेड क्या होता है? एक एक लम्हा जहाँ मायने रखता है. अगर उस वन सेकंड का ध्यान रखे बिना अगर ट्रीटमेंट की जाए तो anyone will die. लेकिन हमारे सदाओ कौन है? जनरल सिटीजन है कोई? नो, he is a surgeon. And of course he is a topmost surgeon. That was the reason students, हमारे सदाओ बिल्कुल willing नहीं थे उस wounded American को वापस सी में डालने के लिए. And of course further he says that he looks so foolish. ओके, और इसका चेहरा देखो, ये कितना सीधा है. ओके, ये बिल्कुल फूलिश है. एंड ऑफ कोर्स ही इज वूंडेड. और उनके लिए, सदाओ के लिए सबसे बड़ा मैटर क्या था स्टूडेंट्स? कि वो जो वाइट मैन था वो वूंडेड था. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, I hope that you all must be enjoying this session of explaining of the chapter.
Okay, that is all from my side today, dear students. Now, tomorrow we will be continuing with our chapters, and side by side, you can do the grammar homework also of the classified advertisements which I am giving you, okay, or which you have received earlier. Keep your work up to date. That is all from my side, lovely students. God bless you all and have a wonderful day ahead.